Hello, good morning. Today I deliver lecture on the last chapter of the trigonometry, that is summation of series, and which is very important. And there are so many methods for sum to a trigonometric series. But here we discuss only two methods. That is, number first is method of difference, and second is CIS method, C plus IS, where C stands for cosine and S stands for sine part. So first here we discuss method of difference. Method of difference means given, suppose that let us take RF term and then write RF term in the difference of two consecutive terms. Then sum of the series can be calculated. For example, method of difference. What is method of difference? Let us suppose that u1 plus u2 plus u3 plus so on plus ur plus un. This be a given series, right? And therefore S can be written as S, which is equal to sum of the series. This is equal to sigma ur, r is equal to 1 to n. Okay. Now, if we write ur, that is rth term of the series, this is, if we can write this in difference of two consecutive terms. Suppose that it is equal to ar plus 1 minus ar, right? Therefore, sigma ur, that is sigma of ar plus 1 minus ar, where r is equal to 1 to n. Now putting the value of r is equal to 1, that means you get u2 minus u1 plus a3 minus a2 plus so on, plus the last term when r is equal to n, you get an plus 1 minus n. यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ a1 को अगर छोड़ दें तो a2 अगले वाले टर्म से कैंसिल हो जाता है, a3 इसके बाद वाले टर्म में कैंसिल हो जाएगा, और उसी तरह से यहाँ क्या बच जाएगा, an इसके ठीक पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा. तो एक टर्म बच रहा है an plus 1 और दूसरा an, and which gives the sum of the series S, because this is S, and therefore S can be calculated, that is a of n plus 1 minus a1, and this is called method of difference, right? Next method is CIS method. Next is C plus IS, or simply write CIS method, where C mean cosine part और S mean sine part. तो सिंपल है, इसमें इस मेथड में एक साथ दो सीरीज का सम निकलेगा, एक में साइन और दूसरे में कोसाइन टर्म्स, और साथ साथ जितने भी अभी तक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, सभी का इसमें जरूरत पड़ेगा. सारे सीरीज का जितना भी निकाले हैं उसका जरूरत पड़ेगा, सीरीज वाला फार्मूला. जैसे ग्रीक सीरीज हो गया, साइन सीरीज, कोसाइन सीरीज, इसका सम कितना होता है इसको निकालने के लिए इसमें जरूरत पड़ेगा. इवन ज्योमेट्रिक सीरीज, और ज्योमेट्रिक सीरीज जो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए उसका जरूरत पड़ेगा, बाइनोमियल का पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल है उसका पड़ेगा, लॉग सीरीज है उसका पड़ेगा. तो सभी का इसमें जरूरत पड़ेगा. करना क्या है इसमें, सपोज दैट C is supposed to be a naught
cos alpha plus a1 cos alpha plus beta plus a2 cos alpha plus 2 beta plus so ये दिया हुआ है, ठीक है। देन यू हैव टू एज्यूम s, अगर c दिया हुआ है तो s मान लेंगे, अगर s दिया हुआ है तो c मान लेंगे, तब c plus is कर देंगे। s is equal to a naught sin alpha a1 sin alpha plus beta plus a2 sin alpha plus 2 beta plus so on. Now c plus is equal to a naught cos alpha plus I sin alpha plus a1 cos, what is cos? Alpha plus beta plus I sin alpha plus beta plus so on. इसी तरह देगा। और ये क्या हो गया? By Euler's formula it gives e to the power I alpha a1 e to the power I alpha plus beta. Next term is similarly a2 e to the power I alpha plus 2 beta plus so on. अब यहाँ क्या देख रहे हैं? इसको ब्रेक करेंगे e to the power I alpha plus e to the power I beta, यहाँ इसको ब्रेक करेंगे e to the power I alpha plus e to the power 2 I beta and so on. तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं e to the power I alpha, बच क्या गया? a naught a1 e to the power I beta plus a2 e to the power 2 I beta plus so on. इस तरह का बचेगा। और अगर इसमें ये सीरीज का वैल्यू दिया हुआ हो, ठीक है ना, then we calculate the value of this. Suppose that this is equal to supposed to be s, then e to the power I alpha, right, into suppose that this is function of e to the power I beta supposed to be, where function of e to the power I beta is equal to this series, ये सीरीज है, ठीक है। तब ये मिल जाएगा। अब क्या हो गया? इसको हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना, दिस इज द वैल्यू। अब इसका क्या करेंगे? रियल और इमेजिनरी पार्ट, इसको क्या करेंगे? नाउ break it in the form of a plus ib, ठीक है। तो c का वैल्यू a देगा और s का वैल्यू b दे देगा, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये दो तरीका है, इसी दो मेथड को इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस में, जिससे कि पहला थ्योरी इसमें है फर्स्ट नंबर थ्योरम, sum of sine series of n terms, sum of sine series of m terms having angles are in AP, ठीक है। अगर एंगल्स AP में है तो उसका सम कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। That is, let us suppose that S is the sum of sine series, that is sine alpha. Angles are in AP, so write only angles AP, and function is only sine, that is sine alpha plus beta plus sine alpha plus 2 beta. तो nth टर्म कितना होगा एंगल का? फर्स्ट टर्म इज अल्फा, सेकंड इज बीटा, सो nth टर्म इज प्लस सो ऑन प्लस साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। यही हो गया। अब देखिए मेथड ऑफ डिफरेंस में कैसे इसको हम ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आप इंटर में पढ़े थे,
उसका यूज करेंगे। उसमें दो फार्मूला यूज किए थे हम लोग। पहला था 2 cos अल्फा sin बीटा, ये कितना आया था? इट गिव्स sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये डिफरेंस फार्मूला देगा। या 2 sin अल्फा sin बीटा, इसमें क्या देगा? cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना? तो यहां हम क्या देख रहे हैं? कोसाइन पार्ट या साइन पार्ट के डिफरेंस के लिए फार्मूला में ये रिजल्ट आना चाहिए। तो अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं? ये टर्म देखिए कॉमन है ना? ये टर्म कॉमन है साइन बीटा। तो दोनों ही से जब साइन या कोसाइन का सम निकालना हो तो क्या करेंगे? ये साइन वाले टर्म से साइन बीटा वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके 2 से गुना कर देंगे प्रत्येक टर्म में, डिफरेंस में आ जाएगा। उसके बाद बस सब को सम कर लेंगे, रिजल्ट निकल आएगा। इसका मतलब है क्या करना है यहाँ पर? बीटा का वैल्यू क्या होगा? तो बीटा का वैल्यू होगा जो कॉमन डिफरेंस है उसका हाफ। ठीक है, तब वही आपको अगला टर्म हमेशा देगा। दैट मीन्स here given that sin alpha, that means multiplying both sides by 2 sin, समझ गए किससे करना है? 2 sin किससे? बीटा बाय 2। देन we get क्या मिल जाएगा? 2 into s into sin बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2 प्लस अगला टर्म 2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2 प्लस सो कहाँ तक? एनवा टर्म तक। तो प्लस 2 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2, ये मिल जाएगा। लेफ्ट साइड तो ठीक है, इसको छोड़ देंगे। दैट इज 2s इंटू साइन बीटा बाई 2 छूट गया। अब यहां पर आइए 2 साइन a साइन b, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो कॉस का लगेगा, कॉस difference of the angle, that is alpha minus beta by 2 minus cos sum of the angles, that is alpha plus beta by 2, ये मिल गया। फिर प्लस 2 cos, सॉरी फार्मूला में cos, अब देखिए फिर यहाँ पर डिफरेंस, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2, बीटा में बीटा बाई 2 घट गया। दैट इज अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस कॉस सम ऑफ द एंगल्स, इसमें फिर जोड़ दिए तो अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2 प्लस इसमें कॉस घटा दीजिए, 2 बीटा में बीटा बाई 2 घट गया, 3 बीटा बाई 2 अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2 माइनस कॉस, दोनों को जोड़ दिए, 2 बीटा में बीटा बाई 2 तो कॉस अल्फा प्लस 5 बीटा बाई 2 प्लस सो ऑन प्लस इसमें कॉस डिफरेंस ऑफ द एंगल्स n माइनस 1 बीटा एंड बीटा, दैट मींस माइनस 1 माइनस हाफ माइनस 3 बाई 2, सो राइट कॉस ऑफ कितना? अल्फा प्लस n माइनस माइनस 1 माइनस 1 बाई 2, दैट इज माइनस 3 बाई 2 बीटा, फिर माइनस कॉस कितना? सम ऑफ द एंगल्स, दैट इज अल्फा प्लस इसमें इसको जोड़ दिए। ठीक है, तो माइनस 1 और प्लस हाफ, दैट इज n माइनस 1 बाई 2 बीटा, ये बच गया। अब देखते हैं कैसे कैंसिल हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म और इसमें देखिए ये माइनस ये प्लस, इसमें
ये माइनस ये प्लस, अगला वाला फिर उसी तरह से। तो कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है? ये कैंसिल हो रहा है, इसमें बचा फर्स्ट, तो लास्ट ब्रैकेट का लास्ट बचेगा। सो वी गेट कितना बच गया? एडिंग वी गेट cos of alpha minus beta by 2 and the last term is minus cos कितना? अल्फा प्लस n माइनस 1 by 2 बीटा, बस यही बच गया। ठीक है, सो s कैन बी कैलकुलेटेड। Therefore s is equal to कितना आ गया? Therefore s is equal to cos alpha minus beta by 2 minus cos alpha plus n minus 1 by 2 beta, right, divided by 2 sin beta by 2। अब फिर से हम इसको फार्मूला पर ब्रेक कर ले सकते हैं। कितना हो गया? cos t minus cos t इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू 2 sin, सॉरी s, अच्छा ये डिवाइड हो गया, ठीक है, तो ये बन गया कितना? 2 sin कितना? सम ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाय 2, अल्फा प्लस अल्फा, दैट इज 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 एंड विच गिव्स अल्फा प्लस, है ना, सम ऑफ द एंगल्स में कितना आ गया? देखिए फिर इसमें इसको जोड़ दिए तो माइनस हाफ माइनस 1, दैट मीन्स n minus 1 into beta by 2, right, into sin difference of the angle but reverse order, that means this minus this, अल्फा अल्फा कैंसिल और इसमें इसको माइनस कर दीजिए, प्लस हो गया, कितना हो गया? कैंसिल, ये माइनस हाफ ये प्लस हाफ कैंसिल, तो कितना बच गया? ओनली n बीटा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 sin बीटा by 2, ठीक है, तो 2 कैंसिल, therefore s is equal to, therefore s is equal to कितना हो गया? that is sin alpha plus n minus 1 beta by 2 into sin n beta by 2, right, divided by sin बीटा by 2, ठीक है, यही सब निकल जाएगा। That is similarly we can calculate, similarly number second, sum of cosine series of n terms whose angles are in AP, इसको निकाल ले सकते हैं। That is s which is equivalent to cos alpha plus cos alpha plus beta plus cos alpha plus 2 beta plus so on plus cos कितना? alpha plus n minus 1 into beta, ठीक है, and this is equal to, इसी तरह का रिजल्ट होगा क्योंकि साइन से मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंस के फार्मूला में भी जब इसको अप्लाई करेंगे या साइन का टर्म में साइन a माइनस साइन b, दैट मींस वन टर्म इज कोसाइन एंड अदर जो डिफरेंस वाला होगा वो साइन का रहेगा, इसलिए ये टर्म साइन का ही रहेगा जो किसी से मल्टीप्लाई करना है, ये केवल कोसाइन में बदल जाएगा। सो राइट हियर cos of alpha plus n minus 1 into beta by 2 into sin n beta by 2 divided by sin beta by 2, तो ये फार्मूला उसी तरह से बनाएंगे
मल्टीप्लाई उसी से करना है 2 sin बीटा बाई 2 दोनों तरफ, उसके बाद डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ये रिजल्ट मिलेगा। और नेक्स्ट ये दो मेथड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, और बाद बाकी तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जहां तक डिफरेंस का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने किया है सभी का अप्लाई हो जाएगा सवाल बनाने में। और अभी हम लोग फिर से देखेंगे इसमें सिक्स मेथड पर उसका अप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम चलेंगे जैसे सिक्स मेथड के लिए, जैसे नंबर फर्स्ट में फाइंड द सम, ठीक है, सीरीज हम ले लें जैसे साइन थीटा प्लस 1/2 साइन 2 थीटा प्लस 1/3 साइन 3 थीटा एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। इसका सम निकालना है। तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट चीज है देखना, जो दिया गया सीरीज है क्या चीज में है, साइन में है कि कोसाइन में है। तो ऑब्वियसली द गिवन सीरीज इज इन साइन, तो हमको क्या मानना पड़ेगा इसको s, और फिर क्या मान लेना पड़ेगा c, दैट इज कोसाइन पार्ट। इसको मान लेंगे, ये सवाल हो गया। इसमें हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट अस सपोज दैट s is equal to this and c becomes cos theta plus 1/2 cos 2 theta plus 1/3 cos 3 theta and so on to infinity। ठीक है, अब क्या करना होगा, therefore c plus is equal to cos theta plus I sin theta plus 1/2 cos 2 theta plus I sin 2 theta plus 1/3 cos 3 theta plus I sin 3 theta plus so on to infinity। तो फर्स्ट वाला भाग क्या देते हैं, it gives e to the power I theta plus 1/2 e to the power 2I theta plus 1/3 e to the power 3I theta plus so on to infinity। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पर, if we suppose x is equal to e to the power I theta, right, then c plus is equal to x plus x square by 2 plus x square by 2 plus x cube by 3 and so on to infinity। अब ये देखना है कि ये सीरीज किसका एक्सपेंशन है, x plus x square by 2 plus so on, ये किसका एक्सपेंशन है। ऑब्वियसली इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ log 1 minus x with negative sign, that means it is log 1 minus x, right, because log 1 minus x is equal to क्या हो जाता है कितना, all terms negative, या log 1 plus x is x minus this plus this minus this, so when write in place of x write minus x, तो सारा all terms फिर से negative हो जाएगा, इसलिए सब टर्म नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस ये हो गया, देन इट इज log of 1 minus x and x is e to the power I theta। अब इसको हम a plus ib में ब्रेक करेंगे and the real part gives the c series, sorry imaginary part gives the s series, क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है s का वैल्यू। तो क्या करना होगा, इसको पहले ब्रेक कीजिए, दैट इज माइनस log 1 minus cos theta minus I sin theta, okay, it is cos theta plus I sin theta and due to negative sign both terms will be negative, then now minus of log 1 minus cos theta, right, minus I sin theta। Now you know the formula cos alpha plus I theta,
log alpha plus I beta is equal to 1 by 2 log of alpha square plus beta square plus I tan inverse beta by alpha. Okay, then by applying this formula we get it is equal to minus of log minus sign 1 by 2 log कितना अल्फा स्क्वायर log अल्फा स्क्वायर दैट इज 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर प्लस minus sign minus square is plus that is plus sin square theta and here minus sign so write minus I tan inverse sin theta divided by this divided by 1 minus cos theta. Okay, it is equal to minus of 1 by 2 log this is equal to 1 plus 1 is 2 minus 2 cos theta that is 4 sin square theta by 2 minus minus plus I tan inverse sin theta is 2 sin theta by 2 and cos theta by 2 divided by 2 sin square theta by 2. Okay, then it is equal to minus 1 by 2 2 sin theta by 2 whole square 2 cancel so you get minus log 2 sin theta by 2 and plus I tan inverse 10 sin cancel that is tan inverse cot theta by 2 and so it is minus log 2 sin theta by 2 plus I this is equal to 10 pi by ये कितना हो गया 10 pi by 2 minus theta by 2 tan inverse 10 cancel so you get pi by 2 minus theta by 2 यही मिल गया c plus is तो अगर कोसाइन सीरीज का निकालना होता तो ये रिजल्ट मिलेगा और मेरा रिक्वायरमेंट है s का एंड देयरफॉर s इज इक्वल टू इट गिव्स सम ऑफ द सीरीज ये मिल गया सम ऑफ द सीरीज ठीक है सम ऑफ सीरीज ये मिल जाएगा कोई दिक्कत इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर से देख सकते हैं find the sum right 1 minus cos 2 theta divided by factorial 2 then plus 4 theta by factorial 4 minus cos 6 theta divided by factorial 6 plus so on to infinity ठीक है तो इस बार क्या दिया हुआ है दिया गया सीरीज ये cos में है तो मानना पड़ेगा इसको c तो therefore for solving the problem we suppose this is equal to c is equal to this and in this case 1 के साथ साइन को नहीं मानेंगे क्योंकि अगर 1 के साथ मानेंगे तो सम में 2 आ जाएगा इसलिए यहां पर s इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 2 थीटा बाय फैक्टोरियल 2 प्लस साइन 4 थीटा बाय फैक्टोरियल 4 माइनस साइन 6 थीटा बाय फैक्टोरियल 6 प्लस सो ऑन टू इंफिनिटी ठीक है 1 के साथ नहीं मानना पड़ेगा क्योंकि 1 के साथ मानने पर क्या होगा सीरीज में जिस समय ये सीरीज सम के बाद जो फॉर्म होता है उसमें 1 एक्सेस टर्म आ जाएगा 1 के कारण इसलिए हम यहां से मानेंगे नाउ c plus is
adding we get this term, that is 1 minus 1 by factorial 2 common cos 2 theta plus I sin 2 theta plus 1 by factorial 4 cos 4 theta plus I sin 4 theta minus 1 by factorial 6 cos 6 theta and so on to infinity. ठीक है, अब क्या हो गया? Again by Euler's formula it can be changed. So it is equal to 1 minus e to the power 2i theta by factorial 2 plus e to the power 4i theta by factorial 4 minus e to the power 6i theta by factorial 6 plus so on to infinity, right? अब देखिए ये सीरीज किसका एक्सपेंशन है? सपोज दैट x is equal to e to the power I theta, then क्या मिलेगा? c plus is देख लेते हैं क्या मिल जाएगा? Then c plus is equal to 1, sorry यहाँ से 1 minus 2 times therefore square, that is x square by factorial 4 plus यहाँ से x to the power 4 by factorial 4 minus x to the power 6 by factorial 6 and so on to infinity, right? अब इसको देखना है ये किसका है एक्सपेंशन, ठीक है? याद कीजिए ये किसका एक्सपेंशन है? दिस इज sum of cosine series, so write cos x, so therefore it gives cos of x, but x is equal to, therefore c plus is is equal to cos and x is equal to e to the power I theta, therefore cos e to the power I theta, but e to the power I theta is equal to cos theta plus I sin theta. इससे नहीं घबराना है, अगर क्या आ रहा है, जो आ रहा है उसको ब्रेक करेंगे, दैट इज अब ये फार्मूला cos a plus b का फार्मूला हो गया, सो राइट cos थीटा इनटू cos I sin थीटा, ठीक है, प्लस है, सो राइट माइनस sin a मीन cos थीटा इनटू sin b एंड b मीन I sin थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं? दिस इज इक्वल टू cos थीटा बट cos I sin थीटा। अब याद कीजिए क्या सा फॉर्मूला था, cos Ix in terms of hyperbolic it can be written as cos hyperbolic x, उसी तरह से sin Ix is equal to I sin hyperbolic x, ठीक है, इसको याद रखेंगे जो हाइपरबोलिक में था, क्योंकि इसमें हम बार-बार बोल रहे हैं कि ये सारा फार्मूला जो पायलट में किए हैं सभी का एप्लीकेशन इसमें हो सकता है, तब इसको हम हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे, तो cos हाइपरबोलिक कितना x का मतलब sin थीटा, ठीक है, माइनस sin cos थीटा एंड cos Ix x के जगह sin थीटा इज इक्वल टू I sin हाइपरबोलिक x, सो राइट I यहाँ पर लिख दिया इनटू sin हाइपरबोलिक sin थीटा, ठीक है, तो c प्लस Is बन गया a प्लस Ib के फॉर्म में। आपको निकालना क्या था? c को इक्वेटिंग रियल पार्ट we get c that is equal to
cos थीटा एंड cos हाइपरबोलिक sin थीटा। तो ये सम ऑफ द सीरीज निकल गया, इस सीरीज का सम कितना ही निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से इसका बनेगा सवाल। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए रेस्ट जो पार्ट इसमें है ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही करना है, और चूंकि ये शॉर्ट टाइम में आपका केवल चूंकि कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन अभी हुआ है उसके कारण ये क्लासेस का संचालन किया जा रहा है, इसलिए बहुत सा पार्ट इसमें अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों का एग्जामिनेशन के लिए ये प्रिपरेशन करना है, तो बाकी तैयारी आपकी होगी। इतना कर देने के बाद और इसके अलावे जो भी है एक्सरसाइज इस पर फिर से बनाया जा सकता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही काम करना है, इसके अलावे बाकी आप घर पर एक्सरसाइज करें अपने से, तो सारा चीज आपका कंप्लीट इसमें हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।